السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ الریحان تجوید سیریز میں آپ کا خیر مقدم کرتی ہوں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ہم الریحان کی سبق نمبر 22 میں آج کیا سیکھتے ہیں، کون سا قاعدہ، کون سا مخرج سیکھا جائے گا آج ہمارا سبق نمبر ہے 21، قاعدہ نمبر 21 ہے، سبق نمبر 22 ہے، اور قرآن میں وقوف کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں وقوف کا کیا بیان ہے۔ وقف کا مطلب ہے رکنا، ٹھہرنا، اور وقوف وقف کی جمع ہے۔ یعنی قرآن میں تلاوت کے درمیان جہاں جہاں ہمیں دیکھیں چھوٹے چھوٹے حروف نظر آتے نا لکھے ہوئے، اس کے ساتھ وہ ہمارے لیے ایک گائیڈنس ہوتی ہے، ہمیں بتایا جاتا ہے، ایک رہنمائی ہوتی ہے کہ ہمیں یہاں پر رکنا ہے یا نہیں رکنا ہے۔ تو وہ جو وقوف ہیں ان کو وقف القرآن یعنی قرآن میں تلاوت کے درمیان رکنے والے وقوف کہا جاتا ہے۔ اور جب ہم یہ وقف کرتے ہیں نا تو ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، ہمیں ان وقوف کا مطلب جاننا بہت ضروری ہے۔ اور اگر ہم خود سے یعنی اگر ہمیں وہ حرف لکھا ہوا ایک نظر نہیں آ رہا اور ہماری سانس جو ہے وہ ٹوٹ رہی ہے تو ظاہر ہے ہم ٹھہریں گے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم کہاں ٹھہر رہے ہیں، ہم یہ تو نہیں کر رہے کہ اس کا مطلب ہی بدل رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو دیکھیے میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتی ہوں کہ ایک جملہ ہے، چور کو پکڑو مت جانے دو، چور کو پکڑو مت جانے دو۔ اب ہم یہاں پر اس جملے میں دو مختلف جگہ پر ٹھہریں گے، ٹھیک ہے، میں نے یہاں مارک بھی کیا، اور پھر دیکھیں گے کیسے ایک پازیٹیو ایک جو ہے وہ نکلتا ہے منفی مطلب، اور ایک جو ہے وہ مثبت نکلتا ہے۔ کیسے دیکھیں، چور کو پکڑو مت بھاگنے دو، چور کو پکڑو وقفہ کیا، مت بھاگنے دو۔ اب یہاں دیکھیں ہم نے کہاں وقف کیا، چور کو پکڑو مت بھاگنے دو، کتنا فرق ہے نا۔ اسی طرح سے جو ہم قرآن میں ٹھہرتے ہیں، وقف لیتے ہیں، تو ہمیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو قرآن میں جو ہم عام وقوف تلاوت کے درمیان کرتے ہیں وہ 4 طرح کے بتائے جاتے ہیں۔ عام جو ہے وہ ابھی میں تلاوت پہ نہیں آئی ہوں، ایک عام جو ہمارا روٹین ہوتا ہے، ایک سین ہوتا ہے نا قرآن مجید کی تلاوت کا، اس کی بات کرتے ہیں تاکہ آپ کو پوری بیک گراؤنڈ پتہ چل جائے۔ پہلا ہے الوقف الاضطراری، آپ کو ان کی نام یاد کرنے کی ضرورت نہیں، اگر کر لیں تو بہت اچھا ہے۔ اب اضطرار ہم یوز کرتے ہیں، اضطرار کیا ہوتا ہے، بے چینی، ایسی چیز جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی، ایمرجنسی۔ اس کا کیا مطلب ہوا، یہ کیسا وقف ہوا، یعنی کسی ضرورت کے لیے ایمرجنسی میں رکنا۔ ایمرجنسی کیا ہو سکتی ہے تلاوت کے درمیان، سانس ٹوٹ سکتا ہے، چھوٹا سانس ہو سکتا ہے ہمارا نا، کچھ لوگوں کا سانس بہت چھوٹا ہوتا ہے تو ان کو جگہ جگہ 3-4 حروف کے بعد قرآن کی تلاوت میں رکنا ہوتا ہے۔ پھر چھینک آنا، چھینک بھی آ جاتی ہے، ہمارے اختیار میں ہے یہ بالکل بھی نہیں۔ کھانسی آنا وہ بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ تو یہ ایک ایمرجنسی سچویشن ہوتی ہے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں ہمیں رکنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ سین ہوتا ہے، اور اب یہ سین کو آپ نے یاد رکھنا ہے اس لیے کہ یہ ہمیں آگے کام آئے گا جو ہے وہ تعوذ وغیرہ پڑھنے کے لیے، کہ اس کے جب رولز آئیں گے تو ٹھیک ہے۔ اب ہے دوسرا ہے وقف الاختباری، یہ کیا چیز ہے، یہ تلاوت کے درمیان یہ جو ہے وہ تدریسی جو ہوتے ہیں نا کام، ان کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے تلاوت کے درمیان استاد کا اپنے شاگرد سے سوال و جواب کرنا،
जैसे आपकी टीचर हैं, वो आपको रोक के आप तिलावत कर रहे हैं और वो आपको रोक के पूछती हैं, अच्छा ये बताइए यहाँ नून साकिन है, तो यहाँ पर नून साकिन का कौन सा कायदा आएगा? अच्छा बताइए यहाँ पर दाल जो है वो साकिन है, यहाँ पर कौन सा दाल का कायदा आएगा? तो आप कहेंगे कलकला। तो इस तरह के जो सवाल और जवाब जो तिलावत से रिलेटेड होते हैं, जो तिलावत के मुताल्लिक होते हैं, उनके लिए जो टीचर आपको रोकती है और या फिर किसी चीज़ को समझाने के लिए रोकती है, आप कहते हैं कि भई मुझे ये नहीं समझ आ रहा, प्लीज़ आप मुझे समझाएँगे? तो टीचर आपको जो है आपके उस्ताद वहाँ सिखाना शुरू कर देंगे तिलावत के दरमियान। तो इस वक़्फ़ को क्या कहा जाता है? अल-वक़्फ़ुल इख्तिबारी, ठीक है? तालीम और तदरीस के लिए जो वक़्फ़ होता है तिलावत के दरमियान। फिर है अल-वक़्फ़ुल इंतज़ारी, इंतज़ार से है, क्या होता है इंतज़ार? इंतज़ार, वेट। तो ये कैसा वक़्फ़ होता है तिलावत के दरमियान? मुख्तलिफ स्टाइल से पढ़ने वाले क़ारी का एक स्टाइल से दूसरे स्टाइल के दरमियान रुकना। कुरान जो है वो 7 अहरुफ पे उतरा था, 7 उसके स्टाइल हैं, 10 भी कहा जाता है। तो वो अलग-अलग स्टाइल हैं, अलग-अलग तरीके हैं पढ़ने के। तो जब एक क़ारी जो एक किस्म की एक तरह की तिलावत कर रहा है, समझें उसने वर्श जो थे, वर्श का एक स्टाइल है तिलावत का, वो पढ़ा है और वो कंप्लीट किया है, जो भी उन्होंने पढ़ना होगा, एक सूरा या कुछ चंद आयात, उसके बाद वो थोड़ा-सा इंतज़ार करते हैं। ये बताने के लिए कि अब वर्श का स्टाइल मैंने ख़त्म कर दिया है, अब मैं दूसरा स्टाइल जो कि हफ्ज़ नासिम हो सकता है, वो शुरू कर रहा हूँ। तो वो जो एक वक़फ़ा होता है ना, एक स्टाइल से दूसरे स्टाइल में जाने का, उसको कहा जाता है अल-वक़्फ़ुल इंतज़ारी। फिर चौथा जो वक़्फ़ है वो है अल-वक़्फ़ुल इख्तियारी। क़ारी की मर्ज़ी पर है, रुके या तिलावत जारी रखे, ऐसे वक़्फ़ की 5 इक़साम हैं, ठीक है? अब हम जो हैं, ये वाले जो वक़्फ़ है, उसको जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, अल-वक़्फ़ुल इख्तियारी। क्योंकि क़ारी जब हम तिलावत करते हैं, तो वही बात है, हमें कहीं जो रुकना पड़ता है, हमें साँस लेना पड़ता है। तो वो जो चीज़ है, वो क़ारी की मर्ज़ी पर है कि वो किस जगह रुके, यानी जहाँ पर अगर हमें इजाज़त है, हालाँकि वक़्फ़ होगा, लेकिन आपको इजाज़त है कि आप रुको या आगे बढ़ो, तो उस वो उसका इख्तियार जो है वो क़ारी की मर्ज़ी पे है। तो ऐसे वक़्फ़ की 5 इक़साम हैं। क़ुरआन में वक़ूफ़ का बयान। वक़ूफ़ुल क़ुरआन कितने हैं यहाँ पर? 5 1 2 3 4 5। अब ये 5 जो वक़ूफ़ मैंने पहले रखे हैं, ये हैं उस्मानी मुसहफ़ जो अरबिक मुसहफ़ है, ये उसके जो है वो रुकने की जगह हैं और ये जो है वो हमारे जो एशियन क़ुरआन है उसमें भी कुछ-कुछ आते हैं। तो देखते हैं पहले जो है हमारे अरबिक मुसहफ़ में ये कैसे आते हैं। ये 5 जो स्टॉप्स हैं, वक़ूफ़ हैं, इनके जो हरूफ हैं वो हैं ला, मीम, सिले, क़िले और जीम। ये इसी तरह से आपको लिखे हुए किसी भी हर्फ के ऊपर नज़र आएँगे। तो आपने उसी के मुताबिक वहाँ पर रुकना है या फिर कंटिन्यू कर देना है, तिलावत को जारी रख लेना है। तो यहाँ पर देखें ला, मैंने ला और मीम को एक साइड पे रखा है, क्यों? क्योंकि ये 2 ही जो हैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हैं, ये बहुत ज़्यादा एक ऐसी चीज़ होती है ना जो कहते हैं एक बॉर्डर पे है, हाई बॉर्डर पे हैं, हाई अलर्ट पे हैं कि ला का मतलब है यहाँ पर रुकना मना है। एब्सोल्युटली नो स्टॉप, बिल्कुल रुकना नहीं है। तिलावत जारी रखना है। उस पॉइंट पे, उस हर्फ पे, उस लफ्ज़ पे रुकना नहीं है। पहले रुक जाएँ, उस लफ्ज़ के 1-2 बाद के लफ्ज़ पे रुक जाइए, लेकिन उस पे नहीं रुकना, ठीक है? फिर है मीम।
मीम का मतलब है यहाँ पर रुकना ज़रूरी है, ज़रूरी है, ठीक है? अब मैं इसके एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊँगी, बस हमारे लिए इतना ही जानना फ़िलहाल काफ़ी है। ला, अरबिक में भी ला का मतलब होता है नहीं, तो आप उससे याद रखिएगा नहीं रुकना। मीम रुकना है, ठीक है? अब रह जाते हैं ये 3। इन तीनों में भी जो है सिले जो है इसमें रुकने की इजाज़त है, मगर तिलावत जारी रखना मुस्तहब है, यानी पसंदीदा है। सिले वसल से याद रख लें, जो सिला मिलाना, ठीक है? अब किले जो है किले वक्फ की उससे याद रख लें, किले जो है रुकने की इजाज़त है, रुकना बेहतर है, ठीक है? यहाँ क्या था सिले में? तिलावत जारी रखना बेहतर है, यहाँ किले में क्या है कि आप कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर रुकना मुस्तहब है। सिले में जारी रखना मुस्तहब था, किले में रुकना मुस्तहब है। जीम जो है वहाँ रुकने की इजाज़त है, लेकिन हमें चॉइस दी गई है। हमारी मर्ज़ी पे कहा गया कि आपकी मर्ज़ी है, आप रुकना चाहें तो आप रुक जाइए, अगर नहीं रुकना चाहते तो कोई मसला नहीं, आप तिलावत को जारी रख सकते हैं, ठीक है? अब ये तो था प्योर हमारे जो अरबिक मुसहफ पढ़ते हैं, हमारे जो बहन भाई उनके लिए। अब आगे चलते हैं हम अपने एशियन मुसहफ की तरफ। और बाय द वे अरबिक मुसहफ में से कुछ जो ये हरूफ हमने देखे उनमें से काफ़ी जो हैं वो हमारे एशियन मुसहफ में भी इस्तेमाल होंगे, हम देखेंगे अभी। कुरान में वक़ूफ़ का बयान। कुरान में तिलावत के दरमियान रुकने और तिलावत जारी रखने के लिए बहुत से निशान हैं जो हरूफ की शक्ल में लिखे हुए नजर आते हैं। और वो कौन कौन से हैं ये देखिए। ता, पहले एक सेट ले लेते हैं हम। ता, मीम, देखिए यहाँ भी मीम आ गया, और काफ और फा, कफ। जब ये आ जाते हैं तो इनका क्या मतलब होता है? रुकना जरूरी है। याद कर लें इनको। ता, मीम, काफ या कफ, ठीक है, रुकना जरूरी है। देखिए इनकी इलामात कैसी होती हैं, ये देखिए यहाँ पर आया ना तो, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे कहा गया है, यहाँ पर भी है तो, कि जब हम यहाँ पर पहुंचे तो हम रुक जाएं, ठीक है? और जब हम यहाँ पर रुके, यहाँ पर पहुंचे, वमा फिल अर्द, तो रुक जाएं। यअलमुल्लाह, ठीक है, यहाँ पर रुक जाए, जरूरी है, रुकना जरूरी है। अब यहाँ पर जो था लिखा हुआ है रब्बिकुम, ये दें कफ, कफ और फा, इस तरह से आप देखेंगे। फा, यहाँ तो साथ साथ लिखा होता है ना कि जो अरबिक मुसहफ होता है इसमें यहाँ ऊपर लिखा होता है, ठीक है? तो कहीं भी लिखा हो हमने इनकी जो है वो अच्छी तरह से हमने देखना है कि इनका क्या मतलब है। ये तो आपने जरूर याद रख लेना है। कौन कौन से 3 हरूफ हैं? क़, मीम और क़ाफ, ठीक है? इनका मतलब है रुकना जरूरी है। अब देखिए इसमें सिले और क़ाफ अरबिक के इसमें आ गया ना, ठीक है? चलें अब देखते हैं हम इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है क़ारी की मर्जी पर मुनहसर है, चाहे तो रुके और चाहे तो ना रुके, दोनों की इजाजत है। किस पे? अगर हमें साद और ये सिल या सल और सिले, ज़ाई, क़ाफ, जीम ऐसे लिखे हुए हमें कहीं भी नजर आएंगे तो उसका मतलब है आप रुक सकते हैं, लेकिन आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी। अब यहाँ से मैंने कुछ थोड़े ढूंढ के यहाँ पर लगाए हैं, देखिए सौद, सौद आ गया ना, जैसे मिर रब्बिहिम ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिनहुम, ठीक है, यहाँ रुक गए क्योंकि मेरी सांस टूट रही थी, मैं रुक गई। अगर मेरी सांस ना टूटे तो मैं इसको कंटिन्यू कर सकती हूँ। ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिनहुम व नहनु लहू मुस्लिमून, ठीक है?
हमारी मर्जी, क्योंकि यहाँ पर ना वो पहले वाले 3 हरूफ होते ना, इनमें से तो हम लाजिम रुकते, लेकिन हमें पता है यहाँ पर हमारे पास जो है हमारी मर्जी है, हमारे पास चॉइस है। तो अगर हम पढ़ सकते हैं, हम जारी रख सकते हैं तिलावत, तो हम रखेंगे, नहीं तो हम ठहर जाएंगे, कोई मसला नहीं, कोई मुश्किल नहीं। ठीक है, अब आ गया ला। ला का क्या मतलब है? ला का मतलब है रुकना नहीं, तिलावत जारी रखें। याद है आपको, ये अरबिक मुसहफ में भी था, है ना, ला। तो देखिए इसमें हमने ला, देखिए यहाँ पर ला आया ना, कि यहाँ पर हमें कहा गया है यहाँ पर नहीं रुकना। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति उलाइका हुम खैरुल बरिय्यह। ठीक है, हमने यहाँ पे नहीं रुकना, क्योंकि अमूमन ये होता है कि हमारी यहाँ सांस टूट जाती है। कोई बात नहीं, अगर आपकी टूट भी गई है तो आप यहाँ पर रुक जाइए। ठीक है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलू, फिर चले जाए वापस, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति उलाइका हुम। ठीक है, कंटिन्यू करना है हमने, यहाँ पर रुक, जगह पे नहीं रुकना। पहले रुक जाएं, बाद में रुक जाएं। ठीक है, आपकी सांस टूट रही है ना, आप ऐसे कर ले, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति उलाइक। ठीक है, उलाइका हुम खैरुल बरिय्यह। तो इसका मतलब है, ला का मतलब है नहीं रुकना। अब है देखें आयत का एंड, आयत पूरी हो गई और हर आयत के बाद हमें ये नजर आता है ना, एक राउंड गोल सा निशान होता है आयत के खत्म होने का निशान। ये और बहुत सी प्यारी प्यारी शेप्स में भी आता है, बट मैंने यहाँ पर आम दिखाने के लिए सिर्फ राउंड रखा है, गोल रखा है। आयत पूरी हो गई, इसका मतलब है हर आयत के बाद रुकना सुन्नत है। आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, अनलेस कि यहाँ पर ला लिखा हो तो आप यहाँ पर रुक के फिर दूसरी आयत शुरू करेंगे। लेकिन अगर आपको, आपके पास इख्तियार है, तो ना हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर आयत के बाद रुका करते थे, हर आयत पूरी होने के बाद रुक जाते थे, तो वो सुन्नत है। तो आपकी मर्जी है ये भी। अब कुरान में जो वकूफ के बयान में एक वक्फ आता है, आपने देखा भी होगा, ये 3 जो नुक्ते होते हैं 2 जगह आते हैं, 3 3 की सूरत में, 3 3 नुक्तों की सूरत में, इसको कहा जाता है वक्फ तान्नुक। क्या कहा जाता है इसे? वक्फ तान्नुक। इसमें जो है दोनों में से किसी एक पर रुकना है, या तो आप पहले पे रुकेंगे या फिर आप यहाँ कंटिन्यू कर देंगे, इसको इग्नोर कर देंगे, दूसरे पे रुकेंगे। ठीक है, पहले पे रुक गए तो दूसरे पे नहीं रुकना, ये इग्नोर कर दिया, इसको पास कर दिया, इस पर से गुजर गए, तो फिर आपने अगले पे तो जरूर ही रुकना है। ठीक है, बहुत ही आम सी मिसाल है अल्हम्दुलिल्लाह, जो है हमारी सूरह बकरा की जो आयत नंबर 2 है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब। हम रुकते हैं ला रैबा पे, ज्यादातर हम कहाँ रुकते हैं? फी पे रुकते हैं ना। ये देखें, ला रैबा पे क्या है? 3 नुक्ते हैं, फिर 3 नुक्ते हमें आगे नजर आ रहे हैं फी ही पे। तो हमारी मर्जी है, हम ला रैबा पे रुके, ला रैब, फिर हम फी ही हुदन। ठीक है, हमारी मर्जी पे है, हमारी मर्जी का जो है। लेकिन यहाँ पर देखिए आप, सुभान अल्लाह, जो है यहाँ पर ये कर दिया गया है कि हमें प्रेफरेंस बता दी गई है। मैं ये देख रही थी कि यहाँ पर एक एक जो है हमारा 3 का नुक्ता, उसके नीचे हमें
दो दो सिले और जीम, इसका क्या मतलब था कि आपका इख्तियार है ना, आप रुके या आगे चले जाएं। तो यहाँ पर आपको दो इसलिए दिए गए हैं कि देखें यहाँ पर प्रेफरेबली ये है कि आप ना रुकें, और यहाँ पर जीम है, लेकिन दोनों जगह आपको इजाजत दी गई है क्योंकि वो आपको बाउंड नहीं करना चाहते कि आपने यही ला रेट पर ही रुकना है। ठीक है, आप इनमें से किसी पे भी रुक सकते हैं, आप इनको भी भूल जाएं, ये वक्त को भूल जाएं, खाली 3 नुक्तों को देखें। ठीक है, आपकी मर्जी है, आप ला रईबा पे रुकें या फी ही पे रुकें, लेकिन हम अक्सर जो है वो फी ही पे रुकते हैं, है ना। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, है ना। आप ऐसे भी रुक सकते हैं, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। अगर हम ला रैब पे रुकेंगे तो क्या होगा, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं, इसमें हिदायत है मुत्तकीन के लिए। और अगर हम फी ही पे रुकेंगे तो क्या होगा, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। ठीक है, तो कोई इसमें मतलब में फर्क नहीं आ रहा। हम एक नुक्ते पे भी पहले रुक सकते हैं, 3 जो नुक्ते की पहली जगह है, और दूसरे पे भी कोई मसला नहीं। ठीक है, तो इसको आपने एक पे रुकना है, दोनों पे नहीं रुकना। एक और जो कुरान में जो हम देखते हैं, अक्सर आप भी देखते हैं माशाल्लाह तिलावत करते हुए, कि जब हम कुरान पढ़ते हैं तो हम देखते हैं सीन का निशान, सक्ता लिखा होता है, सीन लिखा होता है, सक्ता लिखा होता है, या दोनों लिखे होते हैं, डिपेंड करता है कौन सा कुरान है। तो सांस का मतलब है सांस तोड़े बगैर 2 या 3 सेकंड के लिए रुक जाना। अब किसी इंसान, आप इसको ऐसे जाने, किसी इंसान को जब सकता होता है, वो शॉक्ड हो जाता है, सरप्राइज हो जाता है, तो क्या होता है, उसकी सांस 2 मिनट के लिए रुक जाती है, आंखें से खुल जाती है ना। इस ऐसे ही पढ़ना है, 2 सेकंड का जो है हम सांस तोड़े बगैर वक्फा करेंगे, 2 या 3 सेकंड का। कैसे, वकील मन राक, वकील मन राक, कितने बार, थोड़ा सा वक्फा, सांस रोक के और फिर सांस छोड़ते हुए आगे हमने अगला जो है वो जारी रख लेनी है अपनी तिलावत। वकील मन राक। ठीक है, और ये जो चीजें हैं इनको मसले ना बनाएं, जिस तरह छोटे एक्सप्लेनेशन आपको दिए जाते हैं ना, आप उसी तरह से करेंगे तो आपके लिए कोई इंशाल्लाह व ताला बिस्मिल्लाह कोई मुश्किल नहीं होगी। प्रॉब्लम वहाँ आती है जब हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं, वो भी एक स्टेज है। लेकिन अगर आप कोई सख्ता करना आ नहीं रहा, आप नहीं जानते, आपको भी उसका जो अलामा है यहाँ पर, जो उसके लेटर्स हैं, वो भी आपको अभी पता चले हैं, आपके लिए इतना जानना काफ़ी है, क्योंकि ये कोर्स जो है, ये अपर लेवल या जो है वो 2 लेवल का कोर्स नहीं है, ये बिल्कुल फर्स्ट बेसिक लेवल का कोर्स है। और उसमें भी हम बहुत ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रहे कि मैं चाहती हूँ कि आप सिर्फ स्लाइडों से सीख जाइए। ठीक है, और आपको मैंने 2 चीज़ें बताई, सीन और सख्ता जब आपको नज़र आएगा तो आपने क्या करना है, सांस तोड़े बगैर सिर्फ 2 या 3 सेकंड रुकना है, आगे बढ़ जाना है। ये 2 बातें आपने याद रखनी है बस। इसके बाद कितने सकतात हैं, क्यों हैं, किस लिए आते हैं, इनके पीछे क्या राज है, इनके पीछे क्या वो सब है, लेकिन वो अभी मौका नहीं है लेवल 1 पे। ठीक है, लेवल 1 पे आप सिर्फ इसके हरूफ की पहचान कर लें, इसके जो इसकी अलामत है उसकी पहचान कर लें और उसको करना सीख जाएं। जब ये स्टेज आप पार कर लेंगे, ये मरहला हो जाएगा, फिर उसके बाद आप उसके और डिटेल में जाइए। ठीक है ना, फिलहाल तो आपको ये जहां भी नजर आए, आपने सांस तोड़े बगैर 2 या 3 सेकंड के लिए रुक जाना है
और फिर आगे कंटिन्यू जारी कर लेनी है तिलावत। वक़ील मन राक़, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सबक। अभी हम देखते हैं मखारिज। मखरिज जो है हमारा लिसान चल रहा है, जो कि 5वां मखरिज है, आखिरी मखरिज है हमारा। और जुबान जो है लिसान, उसके 10 मखरिज हैं और 18 हरूफ हैं। अब जो है हमने जो है इनके 4 तो मखरिज पढ़ लिए। अब हम अपना आखिरी 5 मखरिज, 3 मखरिज हमने पढ़ लिए। रासुल लिसान अभी इस्तेमाल होगा। और ये जो है हमारे आपके याद करने के लिए मैंने यहाँ पर देखिए इस तरह से लिखा है। और ये मैंने कहीं देखा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं कि इसके जो हैं जो दो दो अलग अलग मखरिज ये हैं। देखिए काफ और काफ, काफ काफ, बाद लाम, है ना, बाद लाम, फिर नून और रा, नून और रा। बाकी जो हैं वो 3 3 के 4 सेट हैं। एक तो वसतुल लिसान में हमने पढ़ा, या जीम शीन, है ना। अब जो है बाकी के 3 सेट हम पढ़ रहे हैं। ता दाल पा हमने पढ़ लिया है, और जो पढ़ रही हैं, सॉरी, अभी हम हमारा जारी है, हमने सिर्फ पा पढ़ा है। अब आज हम जो है उसका दूसरा हर्फ पढ़ेंगे इसी मखरिज का। ता दाल और ता का जो मखरिज है इस पे हम चलते हैं तरफुल लिसान पे। तो तरफुल लिसान को हम अब बिल्कुल इस जाविये से अगर देखें तो हमने क्या कर लिया था, हमने मखरिज रा पढ़ लिया, और क्या पढ़ लिया था हमने, मखरिज नून पढ़ लिया था। और अब हम पढ़ रहे हैं मखरिज ता दाल और पा। मखरिज दाल पढ़ेंगे हम आज। मखरिज दाल क्या होता है? अल्हम्दुलिल्लाह ये हमें आता है और हम इसको अदा भी करते हैं बहुत अच्छी तरह से। जुबान की नोक का ऊपरी हिस्सा या ऊपरी हिस्सा जब जुबान के 2 दांतों और इसके मसूड़ों की लाइन से लगे, जबकि जुबान का पिछला हिस्सा नीचे की तरफ ही हो। ये दोनों एक्चुअली जो दाल और ता, ये दोनों, और ता हमने ये ना एक ही मखरिज है, लेकिन उनको अलग अलग चीजें करती हैं उनकी सिफात। पा जो है हमने क्या पढ़ा था, उसमें जुबान ऊपर रखनी है, मखरिज एक है पा का भी और दाल का भी। दाल में क्या करना है, सेम मखरिज है, एक ही मखरिज है, लेकिन जुबान नीचे होगी। लाइट लेटर है, इसमें हमें कोई इतनी तगो नहीं करनी पड़ती, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, परेशानी नहीं होती हमें। ठीक है, तो इसमें जुबान नीचे होगी। वो क्या था, अक्ता, ये क्या है, अद्दा। नीचे रखी जुबान आराम से अदा हो गई। अब देखते हैं दाल की मिसालें। पहली मिसाल देखते हैं, दावत दाई, दा दा, दावत दाई, ثم رددناه أسفل سافلين फदखुली फी इबादी। फद क्या किया यहाँ पर मैंने, दाल साकिन है, यहाँ भी दाल साकिन है। क्या है मतलब यहाँ पे कौन सा कायदा होगा, जरा पीछे चल के देखते हैं। कलकला, ثم رددناه, रदद, रदद, दद, रदद, फद, फद, फद खुली नहीं है, क्या है, फदखुली फी इबादी। अब दाल की अदायगी में गलतियां, उसमें भी गलतियां करते हैं हम, बिल्कुल करते हैं। देखें, पहली गलती क्या करते हैं, जब इसके बाद मोटा हर्फ आए तो उसको मोटा पढ़ना शुरू कर देते हैं, जो कि एक आम नेचुरल सी एक चीज है। उस पे ये है कि हमें काबू पाने की जरूरत है। ठीक है, गलतियां इसलिए बताई जाती हैं कि हम उनमें सही और गलत में जो है वो फर्क जाने और फिर वो काम ना करें जो गलत है। देखें अब क्या है, ये है असुदु, असुदु, सुदु, सुदु,
कैसे पढ़ते? अस्सुदूर, दू, दू, अस्सुदूर, दूर। कैसे पढ़ना है? अस्सुदूर, दू, दूर, दू, दू नहीं पढ़ना। अस्सुदूर। जब अच्छा, अब आगे चलते हैं। गलती नंबर 2 क्या करते हैं हम लोग? कलकला ना करना। ये बहुत ज्यादा गलती होती है हमारी। या फिर कलकला को इस कदर बढ़ाकर अदा करना कि वो मुतहर्रिक हर्फ बन जाए। अब यहाँ देखें, ये काफी मुश्किल है पढ़ना, इसलिए इसको जरा ध्यान से पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाह रमजान में तो हम ये सूरा बहुत पढ़ते हैं। तो देखते हैं, अल कद्र, अल कद्र, कद, कद, कद्र, कद्र, कद्र। इसको कैसे पढ़े जाते हैं? अल कदर, अल कदर। हम समझते हैं हमने कलकला ही किया, नहीं। हम इसको इसके ऊपर क्या कर देते हैं? हम इस पे फतहा ही लगा देते हैं। अल कदर, अल कदर, अल कदर नहीं है, अल कद्र, अल कद्र, अल कद्र। ठीक है, तो बहुत एहतियात करनी है हमको। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें आसानियां अता फरमाए और हमें इल्म अता फरमाए और हमें हिकमत अता फरमाए कि हम उसकी खूबसूरत प्यारे से कलाम को उसी तरह से खूबसूरती से पढ़ें जिस तरह के उसके पढ़ने का हक है। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगले सबक तक हम सईद को इजाज़त दीजिए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।